So good morning. Let's understand first of all. I think up to question number 6 we did, no? Question 7. Any doubt in question 7? Fine. Now before we go to the next question, I want you people to have understanding of how the returns would be filed and how the returns will be processed on this GSTN, that is our GST portal. उसमें रिटर्न कैसे फाइल होते हैं और किस तरीके से रिटर्न प्रोसेस होता है, that is what we need to understand first, and then we'll go to the next question. Though the next question has no direct relevance with how the returns are being processed or filed, but for your better and clear understanding, we need to understand that रिटर्न कैसे फाइल होंगे और वो रिटर्न कैसे प्रोसेस होंगे. So let's understand. There is an A Limited of Gujarat has made certain supply in the month of February 21. A Limited of Gujarat has made certain supply in the month of February 2021. What is going to happen in the whole month of Feb? Whatever supply which they have made, so they might have supplied to B Limited of Gujarat, C Limited of Maharashtra, D Limited of Delhi, E Limited of, I'll say, Daman and Dadra Nagar Haveli. These are the supplies which has been made by this A Limited during the month of February. Now one by one, what we need to understand is, on each of the transaction, what tax is required to be paid. On this transaction, what is required to be paid? C plus S. On this transaction, what is required to be paid? IGST. On this transaction, what is required to be paid? IGST. Because Delhi is also state. And on this transaction? IGST. Let me again remind you. IGST is required to be paid on which transaction? Interstate transaction. So we need to understand what is the meaning of interstate transaction. What is an interstate transaction? Transaction between two states, transaction between two different union territory, and a transaction between state and union territory is treated as an interstate transaction. One more time. Transaction between two states, two union territories, state and union territories are treated as interstate transaction. And in case if a transaction turns out to be an interstate transaction, what tax is required to be paid? IGST is required to be paid on that transaction. In the month of February, for example, these are the transactions which took place on which tax is required to be paid. So we will also mention the amount, value of the goods and the tax involved. So in this transaction, for example, this is 10,000 plus 1,000 plus 1,000, C plus S. Hello. For example, this is 20,000 plus 2,000. This is 30,000 plus 3,000. This is 35,000 plus 3,500. This is a transaction which took place. Now what A Limited is required to do? A Limited is required to do what? Understand? A Limited is required to file two returns. A Limited required to file two returns in a month. Originally जब GST आया था तब 3 फाइल करने थे, अभी 2 फाइल करने हैं.
तो हम अभी जो करना है वही समझते हैं. What A Limited is required to do at the end of every month. This is just for understanding. Now there is a quarterly return filing has also came, but that still is not a part of your syllabus. So please understand. अभी भी हमें क्या फॉलो करना है? Monthly filing of return. What A Limited is required to do? A Limited required to file GSTR 1. Understand? GSTR 1. GSTR मतलब क्या है? GST, that is a goods and services tax, R return. GSTR 1. What is this GSTR 1? GSTR 1 is nothing but statement of outward supply. क्या है GSTR 1? Statement of outward supply. So whatever outward supply which you have made in a month, those outward supply you have to list out and upload in the form of GSTR 1. तो आपने जितना भी सप्लाई किया है, कौन सा वाला? आउटवर्ड सप्लाई, नॉट इनवर्ड. इनवर्ड सप्लाई होता है परचेस, आउटवर्ड सप्लाई होता है क्या? सेल्स वाले बेसिकली ट्रांजैक्शन. तो आपने ड्यूरिंग द मंथ जितना भी आउटवर्ड सप्लाई किया वो सारा आपको अपलोड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ GSTR 1. कब तक? एक महीना खत्म हो उसके बाद नेक्स्ट महीने की 10th तक. So before or up to 10th of March 2021, you would require to file GSTR 1. Up to 10th of March 2021, these are the transactions of the February 21. So you need to file returns up to March 21 की 10th तक. क्या फाइल करना है? GSTR 1. उसमें हम क्या लिखेंगे? ये सारे ट्रांजेक्शन हम मेंशन करेंगे. तो क्या मेंशन होगा GSTR 1 के अंदर? आउटवर्ड सप्लाई. अभी इंडिविजुअल डिटेल्स क्या जाएगी? इतनी डिटेल्स आएगी. मैं जिस नाम बोल रहा हूं उससे ज्यादा भी हो सकता है. सबसे पहला द नेम ऑफ द रिसिपिएंट B Limited. Then place of supply Gujarat, in this case Maharashtra. हेलो, आपको क्या लिखना होगा? नेम ऑफ द रिसिपिएंट, आपने किसको सप्लाई किया, आपके कस्टमर का नाम. प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां पे आपने सप्लाई किया. आपके कस्टमर का, रिसिपिएंट का GSTN, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू योर ईमेल एड्रेस, जैसे वो तभी पहुंचेगा वहां पे. रिसिपिएंट का क्या? GSTN, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर GST का. आपको लिखना है वैल्यू ऑफ गुड्स, आपको लिखना है इनवॉइस नंबर, कौन से नंबर का इनवॉइस गया. हेलो, आपको लिखना है उस पर कितना CGST पे हुआ, कितना IGST पे हुआ, कितना SGST पे हुआ वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे. ट्रांजैक्शन लेवल इंफॉर्मेशन यू नीड टू अपलोड. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस, हाउ मच क्वांटिटी, व्हाट इज एन HSN. HSN मतलब क्या? जो गुड्स आप बेच रहे हो या कोई गुड्स सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो उसका HSN. HSN is a code which is given by the government. HSN is a code which is given by the government, and universally this HSN codes are same. HSN का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. मतलब हर एक गुड्स को एक कोड दिया है और वो कोड के सामने गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये गुड्स पे कितना टैक्स लगेगा, कितने रेट पे टैक्स लगेगा, वरना कौन डिसाइड करेगा. सो लिस्ट आउट तो करना पड़ेगा ना कहीं कि भाई मोबाइल पे 18% लगेगा, एयर कंडीशन पे 28% लगेगा. तो ये एयर कंडीशन ऐसा वर्ड तो होगा, लेकिन ये एयर कंडीशन का भी एक नाम के साथ साथ एक कोड नंबर भी दिया होगा. सो अब कार अगर देखो तो अप टू 1200 cc इंजन हो तो दैट इज अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ कार, उसका अलग HSN कोड होगा. 1200 से ज्यादा अप टू 1800 हो हॉर्स पावर या फिर आप क्यूबिक कैपेसिटी तो उसका अलग HSN होगा. मोर देन 1800 SUV हो तो उसका अलग HSN होगा. यू अंडरस्टैंड? सो हर एक प्रोडक्ट का ये HSN कोड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है. वो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी हम कोई सप्लाई करते हैं,
तो हमें देखना होगा कि हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट का HSN कोड हमें ढूंढना होगा। कहां पे लिखा होता है? दैट इज कॉल्ड एज टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है? किस पे कितना टैक्स लगेगा वो वाला लिस्ट। कौन से गुड्स पे या कौन सी सर्विसेज पे कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा उसे बोलते हैं हम क्या? टैरिफ। सो जीएसटी लॉ डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, इट इज अ टैरिफ व्हिच स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स। तो जब भी हम कोई आउटवार्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब भी हम कोई आउटवार्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा हम कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, और वो सर्विस या प्रोडक्ट के सामने कितना रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, उतना रेट ऑफ टैक्स हमें पे करना होगा। वो 0% भी हो सकता है, वो 6% भी हो सकता है, वो 12% भी हो सकता है, वो 18% भी हो सकता है, वो 28% भी हो सकता है, वो 1% भी हो सकता है, वो 2.5% भी हो सकता है। तो हर एक प्रोडक्ट के सामने उसका रिस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स मेंशन किया है, जिसको कि हम टैरिफ बोलते हैं। और जब प्रोडक्ट को कोड दिया गया है उसे हम बोलते हैं HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। दिस हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज adopted worldwide. So HSN of India would be very much similar to HSN of USA or any other country for uniformity. हाँ, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो कंट्री अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, लेकिन प्रोडक्ट के सामने कोड कौन सा देना है वो डिसाइडेड है। फिर अपने अपने हिसाब से कंट्रीज अपने को जितना उसको टैक्स चार्ज करना है वो प्रोडक्ट पे वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कोड फिक्स रहेगा, which is same worldwide. Am I clear on this? So what we need to upload in GSTR1? See, जब GSTR1 हम फाइल करते हैं, हम तब कोई टैक्स पे नहीं करते हैं। जब हम GSTR1 फाइल करते हैं ना, तब हम कोई टैक्स पे नहीं करते हैं। और आइडियली स्पीकिंग GSTR1 इज नॉट अ रिटर्न। GSTR1 रिटर्न नहीं है। तो GSTR1 क्या है? बोला ना, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवार्ड सप्लाई, इट इज नॉट अ रिटर्न। क्या है ये? जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ एन आउटवार्ड सप्लाई। व्हेन आई से स्टेटमेंट ऑफ एन आउटवार्ड सप्लाई, दैट मीन्स द लिस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन विच वी विल लायबल टू पे टैक्स। और किसको मैंने क्या सप्लाई किया है वो लिस्ट मुझे अपलोड करना है। सो ये मुझे कब तक करना है? बीइंग एन ए लिमिटेड 10th ऑफ ठीक है। ये ए लिमिटेड कहां पे जाएगा? ए लिमिटेड को फाइल करना है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। किस पे? GSTN पे। तो वो क्या करेगा बंदा? वो लॉगिन करेगा अपने पोर्टल पे, दिख रहा है ना, वो बंदा अपने पोर्टल पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करके एक्सेल का टेम्पलेट ही होगा, ये एक्सेल के टेम्पलेट के अंदर ये सारे ट्रांजैक्शन को वो फिट करेगा। कौन सा इन डिटेल हमें देना है? नेम ऑफ द रिसिपिएंट, GSTN ऑफ द रिसिपिएंट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, place of supply, value of goods or a service, amount of tax which has been paid on it. So C कितना पे हुआ, S कितना पे हुआ, I कितना पे हुआ, अगर UT एप्लीकेबल है तो UT कितना पे हुआ। Are you getting? Total invoice value कितना है? ये सारा कौन अपलोड करेगा? सप्लायर अपलोड करेगा अपने पोर्टल पे। कौन से फॉर्म में जाएगा ये? ठीक है। टैक्स अभी पे नहीं हुआ है। जैसे ही 10th को ये अपलोड हुआ, सो दैट इज द लेटेस्ट टाइम। अगर आप पहली तारीख को बैठ के करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको 10th को करना है। अप टू 10th। इट इज नॉट दैट एवरीवन शुड कम ऑन द 10th एंड अपलोड दिस, नो, अप टू 10th। और कितनी बार आप अपलोड करना चाहते हो वो भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अगर आप फरवरी के अंदर हो, आप
हर रोज जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर देना चाहते हो कि भाई कितने इनवॉइस मैंने अपलोड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब 1 फरवरी को आपने 10 ट्रांजेक्शन की आउटवर्ड सप्लाई किया और 1 फरवरी को ही अपलोड कर देते हो कि ये 10 ट्रांजेक्शन हो गए, फाइन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एडिंग। हाँ, 10th के बाद नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? सो आप जब भी अपलोड करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप रोज अपलोड करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप महीने में एक बार अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स का पेमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सो यू नीड टू अपलोड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ योर आउटवर्ड सप्लाई ऑन योर पोर्टल इन द फॉर्म ऑफ GSTR1 up to 10th of the next month. On 11th, what is going to happen? आपने जितना भी ये आउटवर्ड सप्लाई के ट्रांजैक्शन अपलोड किए हैं उन सब पे ये रिसिपिएंट है, उनको आईटीसी मिलनी चाहिए। हेलो, आईटीसी मिलनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने ये टैक्स पे किया है, आपसे परचेज किया उस पे। सो बी लिमिटेड ने 1000 सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स पे किया है, उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। सी लिमिटेड को 2000 का आईटीसी मिलना चाहिए, इसको 3000 का मिलना चाहिए, इसको 3500 का मिलना चाहिए। नाउ व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ जीएसटी कि आप आईटीसी तभी ले सकते हो, अब मैं बात कर रहा हूं रिसिपेंट के लिए, रिसिपेंट आईटीसी तभी ले सकता है जब सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई दिखाया हो, उस पे टैक्स पे किया हो, बेसिकली जब उसे रिटर्न फाइल किया हो तभी ले सकता है। एक चीज समझो आप, अगर मैं आज आपको ये पेन बेच रहा हूं तो पेन के साथ मैंने आपको इनवॉइस दे दिया, तो आप जब अकाउंटिंग करोगे तो मैंने परचेस का एंट्री समझाया था ना आपको कि परचेस का एंट्री हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और टू बैंक। जब फिजिकल इनवॉइस आपके पास आएगा आप आईटीसी तभी ले ही लोगे, आप महीने तक वेट थोड़ी करोगे अकाउंटिंग के लिए। हेलो, आपके पास जब भी गुड्स आएंगे उसके साथ इनवॉइस आएगा तो आप अकाउंटिंग करोगे कि वेट करोगे एक महीने का? इमीडिएटली हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग करके हम आईटीसी ले भी लेंगे। जहां पे बी लिमिटेड ने दिखाया होगा कि आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, वैल्यू ऑफ गुड्स इज 10,000, 1000 CGST, 1000 SGST I have paid and I am going to avail a credit of it. So बुक्स में आपने आईटीसी ले भी ली होगी, लेकिन महीना खत्म होने के बाद आपको क्या करना होगा, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर का प्रिंट निकालो कि आपने पूरे फरवरी में कितना परचेज किया है, आपने फरवरी में कितना परचेज किया है, और उसको टैली करो अपने पोर्टल पे जाके कि सामने वाले ने, मतलब जिससे कि आपने गुड्स खरीदे हैं, क्या उसने अपना आउटवर्ड सप्लाई दिखाया है या नहीं दिखाया है। क्योंकि अगर आपने इन अ गुड फेथ इसको पेमेंट कर दिया, आपने इन अ गुड फेथ क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, और अगर ये बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा ना, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। So this is an exercise which everyone needs to do at the end of each month. That is in comparison. We are talking about whom? Recipient. A recipient need to do this exercise every month, finding out the amount of ITC which he has availed as per his books of account. Compare it with a portal. पोर्टल पे जाओ, पोर्टल पे कंपेयर करो कि पोर्टल पे कितनी आईटीसी दिख रही है। आर यू गेटिंग? तो आपको शायद वैसा भी मिलेगा कि देयर वर सम आईटीसी व्हिच यू फॉरगॉट टू अवेल। व्हाई? यू परचेज इट ऑनलाइन, तो आपको पता ही नहीं था कि इस पे आईटीसी आपको मिलेगी, या फिर वो मिस हो गया था, तो वो आप तभी भी ले सकते हो। और एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी भी होगी जो आप आईटीसी लेके बैठे होगे, सामने वाले ने वो आउटवर्ड सप्लाई अपलोड ही नहीं किया होगा, तो आप सोचोगे कि ये बंदा कैसे वेरीफाई करेगा। सो जैसे ही ये GSTR1 फाइल होगा 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक, दैट विल इमीडिएटली फ्लो टू ईच वन ऑफ देम सबके पास जाएगा। ये कौन से फॉर्म में? दैट इज नोन एज GSTR2A। क्या बोलते हैं उसको?
2A. 2A is nothing but a replica of 1, लेकिन on the other side of the table. 1 में सारे ट्रांजैक्शन A के अंदर है. 2A क्या होता है कि वही ट्रांजैक्शन आपने 1 के अंदर जिसका नाम नंबर लिखा उसको जाके पहुंच जाएंगे. ये देखो A ने ये दिखाया है इनवॉइस नंबर के साथ, वैल्यू ऑफ गुड्स के साथ, अमाउंट ऑफ जीएसटी के साथ. सो जितनी भी डिटेल जीएसटी 1 में अपलोड हुई है वो सारी डिटेल कहाँ पॉपअप होगी? सामने वाले को. सो सामने वाला चेक कर सकता है. सो अगर इन अ मंथ इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट ए लिमिटेड हैज सप्लाइड 10 टाइम्स टू बी लिमिटेड. महीने में एक ही ट्रांजैक्शन ऐसा जरूरी नहीं है ना. 10 बार सप्लाई किया है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को, तो 9 इनवॉइस दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा है. सो वेरी मच पॉसिबल अपलोड करना रह गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन. या फिर परचेज 1 लाख का था, उसने गलती से एक जीरो कम डाल दिया 10,000 एंड अकॉर्डिंगली टैक्स अमाउंट इज आल्सो लो, तो उतना टैक्स आईटीसी कम दिखेगा. अगेन वेरी मच पॉसिबल. या फिर दिख ही नहीं रहा है. क्यों? वो बोल रहा है मैंने अपलोड किया है फिर भी आपको क्यों नहीं दिख रहा है? तो शायद नंबर गलत डाला हो. जीएसटीएन ए ने कोई बनता नंबर डाल दिया हो. पॉसिबल है, बहुत बहुत पॉसिबल है ये, क्योंकि कहाँ जीरो है कहाँ ओ है पता नहीं चलता है, कहाँ एल है कहाँ आई है पता नहीं चलता है, कहाँ 1 है कहाँ एल है कैपिटल पता नहीं चलता है. बहुत बार आई कहाँ पे है पता नहीं चलता है. सो इट्स वेरी मच पॉसिबल. या फिर अगेन वन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज नॉट मैचिंग, कल हमने अंडरस्टैंड किया था. ये कोई हम रिटर्न फॉर नहीं रहे, ये सिर्फ मैं आपको ना ब्रीफ दे रहा हूँ. रिटर्न again has its own complexities so that we are going to understand in detail. अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ how the transaction will flow. मैंने बोला था ना हर एक पॉइंट को हम टच अप करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. so that whenever I am asking you to visualize something you should have a vision कि okay fine ये डायरेक्शन में सोचना है. ऐसा कुछ सर ने बोला था. so understand, कल हमने डिस्कस किया था that in one state there is a requirement of 1 registration. In case if you want to have more number of registration, you can have it, but it is not compulsory that you need to have separate registration for each state. It is not compulsory. You can have 1 registration in one state, but at the same time, if you are supplying from other state, then you must have separate registration in your another state. So it is very much possible that A Limited is supplying goods to B Limited. B Limited has a branch in Gujarat. B Limited also has a branch in Maharashtra. And A Limited दोनों को सप्लाई कर रहा है. गुजरात वाले को यूनिट को भी सप्लाई कर रहा है, महाराष्ट्र वाले यूनिट को भी सप्लाई कर रहा है. तो B Limited का अगर गुजरात में भी यूनिट है, महाराष्ट्र में भी यूनिट है, तो दोनों का नंबर सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा. तो अभी जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है, या फिर जो बंदा इनवॉइस प्रिपेयर कर रहा है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं होता है. वो सिर्फ बीकॉम बंदे होते हैं जो डेटा एंट्री का काम करते हैं. तो उसने तो क्या किया कि ए लिमिटेड के सेल्स के मैनेजर ने बोल दिया बी लिमिटेड का नाम का इनवॉइस बना दे, फटाफट गुड सप्लाई करना है. प्लान ठीक है सर. तो पहला जो दिखा बी लिमिटेड 2, 3, 4 हो सकता है. क्यों 4 हो सकता है? हमें 4 मास्टर क्रिएट करने पड़ सकते हैं बीइंग इन ए लिमिटेड. क्यों? क्योंकि जहां जहां जितने रजिस्ट्रेशन उतने मुझे मास्टर क्रिएट करने पड़ेंगे. तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि मैं कहाँ सप्लाई कर रहा हूँ. गुजरात सप्लाई कर रहा हूँ, महाराष्ट्र सप्लाई कर रहा हूँ, राजस्थान सप्लाई कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश वाली बी लिमिटेड, कौन सा बी लिमिटेड? क्योंकि सेपरेट रजिस्ट्रेशन मीन्स सेपरेट एंटिटी इन जीएसटी. सो इफ द पर्सन प्रिपेयरिंग एन इनवॉइस, person passing an entry for the sales in A Limited is not competent enough to understand where exactly goods are going, and by mistake he mentioned the GST of the B Limited of another state or even within the state. अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है B Limited के तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. तो देखो A Limited जो इंफॉर्मेशन 1 में डालेगा ना, 1 कुछ अपना दिमाग नहीं दौड़ा रहा है, वो सीधा जो आपने डाला वो सामने वाले को डिलीवर कर रहा है जो आपने डाला वो. सो अगर आपने गलत जीएसटी डाला तो जो जीएसटी डाला उसके पास जाएगा. बी लिमिटेड की जगह पे आपने सी लिमिटेड का नंबर डाल दिया तो सी लिमिटेड को पॉपअप होगा कि भाई आपने ट्रांजैक्शन किया है क्या, ऐसा कोई, क्योंकि ए लिमिटेड बोल रहा है उसने आपको बेचा है. आर यू गेटिंग इट? आपको इमीडिएट दिखेगा
तो आप सोचोगे यार ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, ये गलती की है। हेलो, तो जैसे ही ये 10th को 1 अपलोड करेगा, 11th से ये दिखने लगेगा सामने वाले को इन द फॉर्म ऑफ 2A। सो बी लिमिटेड को ना सिर्फ ए लिमिटेड का ट्रांजैक्शन दिखेगा, बी लिमिटेड को वो भी ट्रांजैक्शन दिखेंगे जो उसने किसी और से खरीदे हैं। आप समझ रहे हो? यहां से जैसे मल्टीपल लोगों के पास गया, वैसे इसके पास भी मल्टीपल लोगों के पास से आ रहा है, सी के पास भी मल्टीपल लोगों से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए से खरीदा है। तो वो सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे इन लोगों को फ्रॉम 11th इन द फॉर्म ऑफ 2A, which they need to reconcile with an ITC which they have availed as per the books of account. So books of account में कितनी ITC दिख रही है, तो उसके साथ उनको ये चेक करना रहेगा कि भाई ITC हमारी बुक्स के हिसाब से कितनी दिख रही है। क्लियर? Sure. Then 20th of the next month, you need to file GSTR 3B. Now this is a return when you need to make a payment. So आपको 10 तारीख तक का टाइम दिया है, ध्यान से समझो। आपको 10th तक का टाइम दिया है कि आप सिर्फ अपने जो आउटवर्ड सप्लाई है सामने वाले को कम्युनिकेट कर दो। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सामने वाले को पता चले उसको कितनी ITC मिलेगी। Are you getting? तो फिर सामने वाले को दूसरे 10 दिन दिए कम्युनिकेट करने के लिए ए लिमिटेड से, यार तूने गलती की है, ये चेंज कर दे, ये चेंज कर दे। तो वो 10 दिन दिए, 10 दिन तक उसको चेंज कर देना। फिर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को ऑल ऑफ दिस विल फाइल। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बी लिमिटेड एज ऑफ नाउ, तो बी लिमिटेड बोलेगा हाँ ठीक है ट्रांजेक्शन सही दिख रहा है, मुझे 2000 की ITC दिख रही है, तो ये 3B में 2000 की ITC लेगा। उसको वो सेट ऑफ करेगा किसके सामने? इन द February बी लिमिटेड ने जो कोई भी सप्लाई किया होगा, उस पर जो कोई भी टैक्स पे करने आ रहा होगा, उसके सामने वो सेट ऑफ करेगा और यहाँ पे वो टैक्स का पेमेंट करेगा। सो द पेमेंट ऑफ द टैक्स इज हैपनिंग ऑन 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ व्हेन यू आर फाइलिंग योर 3B, बट ऑन द 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ you need to upload the statement of outward supply. So this one is basically not a return, it is something called an annexure to a 3B, but this annexure is filed first, main return comes later on. Normally main comes first, annexure comes later on, लेकिन यहाँ पे statement comes first on the basis of that, क्योंकि ये चेन देखो आप 1 अगर फाइल हुआ ना तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ए के लिए इंपॉर्टेंट है उसके आउटवर्ड सप्लाई को फाइनलाइज करने के लिए, बी के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ITC को फाइनलाइज करने के लिए। वैसे ए लिमिटेड ने किसी से परचेस किया होगा, वो भी सेटल होगा। आर यू गेटिंग? सो दिस होल प्रोसेस ऑफ transmitting the ITC to the next person is being done by this GSTN portal, and the finalization of the duty liability for the respective month again will be done by the portal. So आप जब पोर्टल पे डालोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि ओके फाइन दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। अभी तो ये सिस्टम थोड़ा हाइब्रिड कर दिया, पहले जो सिस्टम था वो तो बहुत फुल प्रूफ था, लेकिन अभी आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, जब हम रिटर्न पढ़ेंगे तब मैं आपको वो सिस्टम भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में वो कभी ना कभी आएगा ही। अभी भले नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ द होल सिस्टम फंक्शंस। अभी सिर्फ इतना ही जरूरी है कि GSTR 1 क्या है? क्या है GSTR 1? स्टेटमेंट ऑफ, वहां पे टैक्स का पेमेंट करना है? नहीं। टैक्स का पेमेंट हम कब करेंगे? जब हम 3B फाइल करते हैं ऑन द 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तब हमें टैक्स का पेमेंट करना है। अभी हमें टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। Am I clear on this? Sure. So if you want to write down, then it's fine. Otherwise, let's move on to the next question. Question 8. ये सिर्फ मुझे ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना था। Let's come on question number 8. No, page number 17. Should I remove this?
Let's see question number 8, everyone. Page number 17. Read the question out. Mr. A, registered person under GST located in Tamil Nadu, sold goods worth rupees 10,000 after manufacture to Mr. C of Chennai. Subsequently, Mr. C sold these goods to Mr. H of Hyderabad for rupees 70,500. Mr. H, being a trader, finally sold these goods to customer Mr. S of Sikandarabad for rupees 30,000. Applicable rate of CGST 9%, SGST 9%, and IGST 18%. Find the net tax liability of each supplier of goods and revenue to the government. You understood? What is happening? I'm briefing you. There is a Mr. A Limited located in Tamil Nadu, sold goods worth rupees 10,000 after manufacture to C Limited of Chennai. So सबसे पहले ट्रांजेक्शन हो रहा है between A and C. Value of goods are 10,000. CGST, SGST. Then the C, तो अभी इसमें क्या होगा? It would be an output tax liability of A, input tax credit for C. So A is selling to C. Then C subsequently sold these goods to H of Hyderabad. So C से जा रहा है H के पास. H finally sold these goods to S of Sikandarabad. So S से जा रहा है H से जा रहा है S के पास. So this is how the transaction is happening. Now we'll see CGST SGST point of view से. So पहला transaction है वो क्या है? C plus S. दूसरा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? चेन्नई से जा रहा है वो हैदराबाद. So this transaction is falling under IGST. Then हैदराबाद से वो जा रहा है कहां पे? सिकंदराबाद. तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? C plus S. So this is a C plus S. Am I clear? Sure. So पहले ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी है? 10,000. दूसरे ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी है? तीसरे की वैल्यू कितनी है? 30,000. So since in the first case the rate of tax is 9%, so we will charge 900 C and S, total 11,800. Fine. And this would be available as an ITC to C. अभी यहाँ पे हमारे पास A के पास कितना क्रेडिट है वो हमें नहीं पता है. Therefore, this full money will go to in cash. उतना कैश में गवर्नमेंट को पैसा मिल गया क्योंकि A के पास कितनी क्रेडिट है हमें नहीं पता है. Then it comes to this 17,500. ये भाई साहब को ये ITC मिल गई है. 17,500 का 18% मुझे बताओ कितना हो रहा है? 3150. This is the total invoice value. Now please understand यहाँ पे IGST पेमेंट आ रहा है 3150 का. IGST का पेमेंट आ रहा है 3150 का. लेकिन उसके पास ITC है C plus S की, which he can utilize here. So he'll utilize C and S both 900, 1800 डिडक्ट करके कितना आया? 1350. This 1350 he will pay to government in cash. Are you getting it? सामने वाले को ITC कितने मिलेगा? सामने वाले को तो भाई पूरा मिलेगा, उसको सिर्फ 1350 नहीं मिलेगा, उसको पूरा 3150 का ITC H को मिलेगा. Am I clear? अब यहाँ पे 30,000 के हिसाब से C plus S, तो C plus S 9%, 2700. So यहाँ पे लायबिलिटी है C और S की 2700.
2700, लेकिन उसके पास आईटीसी पड़ी है कितनी 3150। तो पहले वो यूटिलाइज करेंगे हम आईजीएसटी की आईटीसी पूरा 2700 यहाँ पे हम यूटिलाइज कर लेंगे। रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा 3150 जो आईटीसी थी उसमें से 2700 हमने सी के सामने यूटिलाइज किया, बाकी का जो रहा वो कितना आ रहा है 450. दिस 450 विल यूटिलाइज हियर। सो यहाँ पे कुछ कैश में पे नहीं होगा, यहाँ पे बाकी का अमाउंट कैश में पे होगा। कितना हो रहा है तो अगर आपको कोई पूछे गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला तो आप बोल सकते हो ये मिला है गवर्नमेंट को। लास्ट वाला ट्रांजैक्शन पे जो हुआ ना वही मिलता है गवर्नमेंट को, और कुछ नहीं मिलता, ज्यादा दिमाग दौड़ाने का ही नहीं। अगर समझना है तो फिर भी आप समझ सकते हो 900 यहाँ पे मिला, 1350 यहाँ पे मिला, 2250 यहाँ पे मिला, टोटल कर लो आप, वही होगा। तो आपको सीधा अगर यहाँ से मिल रहा है कि गवर्नमेंट सेंट्रल को कितना मिला 2700, स्टेट को कितना मिला 2700, खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात? श्योर? तो आपको वो नहीं देखना है, आपको इसमें ये देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2700 मिला, स्टेट को 2700 मिला, कहाँ कैसे यूटिलाइज करके मिला है वो आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी समझ रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सी को ये 9 मिला, एस को 9 मिला, ठीक है। उसके बाद ये पूरा किसको मिला सी को मिला, उसके बाद ये किसको मिला स्टेट गवर्नमेंट को मिला। स्टेट गवर्नमेंट को ये भी मिला है और ये जो सेट ऑफ हुआ है वो भी मिला है। आर यू गेटिंग इट? तो इन दोनों का टोटल करो कितना हो रहा है 2700 आ गया, इसका टोटल करो कितना हो रहा है प्लस इधर गया हाँ ये 1350। सो अभी टोटल करोगे सीधा वो भी 2700 आएगा, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। उससे बेटर है कि आप स्टेट और सेंट्रल का फिगर यहीं से ले लो। हेलो, am I clear on this? So this is what you need to do. So this is your question number 8. Just quickly go through it, just for the purpose of understanding of how to present. इसलिए आंसर दिया हुआ मैंने। This is for your understanding. अब यहाँ पे एस को कोई आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि एस इज ए फाइनल कंज्यूमर, तो उसको ये 2700 की आईटीसी नहीं मिलेगी। आईटीसी उसे मिलती है जो बंदा रजिस्टर्ड है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अंदर आपको देखना है वो प्रेजेंटेशन फॉर्म देखना है। सो अंदर देखिए कंफ्यूज मत होना, आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो वही चीज अलग तरीके से लिखी गई है मॉड्यूल में, और कुछ नहीं है। Done? Come on, question number 9. Start reading. Mr. C of Tamil Nadu supplied goods or service for rupees 20,000 to Mr. M of Maharashtra. So the first transaction is interstate transaction. 20,000 का सप्लाई किया है तमिलनाडु से महाराष्ट्र। SGST and CGST rate on supply of goods and services 9% each. IGST rate is 18%. Find the following.
Total price charged by Mr. C. And who is the liable to pay GST? So now this is the simplest thing which we can say. Just quickly go through question number 9 on page number 18. I hope you understood, no? Just to identify whether IGST is payable or CGST, SGST payable. Done? Question 10. Mr. M of Maharashtra supplied goods or services for 35,000 to Mr. P of Pune. Intrastate. Mr. M purchased goods or services for 23,600 inclusive of IGST 18% from Mr. C of Tamil Nadu. SGST and CGST rate on supply of goods and services is 9% each. Find the following. Total price charged by Mr. M for supply of goods or services. And B. Who is liable to pay GST? C. Net liability of GST. Now see this sort of question, and this is something, this introduction chapter, no, is not something which I have taken from your interest module. This is something which I have taken from your finals module. ये final में है, ऐसे question आते हैं. So you can imagine that kind of questions they probably may ask if they want to ask out of the first chapter. So don't be so much happy. बिकॉज किसी को पूछूंगा ना फाइनल वाले को पेपर किसका खराब गया तो बोलेंगे जीएसटी का आईडीटी का, तो ज्यादा फॉर्म मत आना, इतने सारे प्रोविजंस आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ. So what is happening in this case is Mr. M of Maharashtra has supplied 35,000 के value of goods or services to Mr. P of Pune. So वो तो इंट्रास्टेट हुआ, उस पे CGST, SGST 9% लगेगा. लेकिन M ने ओरिजिनली परचेस किया था ये 23,600 में, which is inclusive of GST. So क्या करना है? 118 पे 23,600 क्योंकि इंक्लूसिव बोला है, तो 18 पे कितना? हेलो, इंक्लूसिव बोला है ना यहाँ पे कि 23,600 इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. तो अगर बेसिक वैल्यू हो 100, टैक्स अमाउंट हो 18, तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 118. यहाँ पे भी हमें 23,600 दिया हुआ है, सो 118 पे 23,600, तो हमें आईटीसी चाहिए, तो 18 पे कितना? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी व्हिच इज कमिंग? 3600. So the amount of IGST का ITC comes to 3600, which you are going to do set off against the payment of your CGST, SGST 9% each for 35,000. Am I clear? Sure. The only different point which came here is inclusive वाली amount दी गई है, उसके अलावा बाकी कोई फर्क नहीं है. समझ में आ रहा है? Let's quickly go through it. पहले कोई छींक आती थी तो क्या बीच दर्द नहीं मतलब. ऐसे दिखने लगेंगे.
Fine. Question 11 you can keep on hold because that is about an utilization of an ITC mechanism. That is more appropriate to discuss when you are discussing a chapter of an ITC. ITC कैसे यूटिलाइज करनी चाहिए उसके कॉन्टेक्स्ट, so that you can keep on hold. Then there is a next topic called about a GSTN, which I think we discuss a lot today. What is a GSTN? GSTN is Section 8 company, which is a trust basically. Listen, you need to listen to me. I'm not reading out of it. Close your books. तो ये GSTN बेसिकली क्या है, अगर आपको शॉर्ट नोट पूछते हैं, सो दिस इज अ पोर्टल. GSTN क्या है? तो दिस इज अ पोर्टल, लेकिन पोर्टल से पहले भी वो एक कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, विच इज अ ट्रस्ट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड. So they are also the stakeholder of this. And what is the role of this GSTN? The role of GSTN is to provide necessary facilities to whom? किसको facility देने के लिए है ये? सिर्फ SSC को? No. Necessary facilities to an SSC, to government officers, बैंक. सो ये GSTN पे हम जितने भी काम करते हैं, रिटर्न फाइल करना, टैक्स पे करना, तो टैक्स पे करने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट करना है ना, सो चलन क्रिएट करना, वो चलन के सामने बैंक पे से पे करना, सो बैंक के साथ भी को रिलेटेड है ये. हेलो, सामने वाले तक ITC पहुंचाना, गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना कि IGST अपना कलर चेंज कर रहा है, जो हमने देखा IGST में से CGST SGST बन गया. सो कौन सी गवर्नमेंट को कितनी रेवेन्यू होगी, वो पूरा कैलकुलेशन भी ये GSTN ही करके गवर्नमेंट को देगा. Are you getting it? So this GSTN is a portal where the whole data of the country will get processed. Am I clear? उसके लिए फिर उन्होंने ना 2-3 मैकेनिज्म भी रखे थे, अभी भी हैं. अगर आप मंथली अपलोडिंग करते हो तो आप खुद भी, मैंने बोला एक्सेल यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी को यूज करके अपने हिसाब से सीधा पोर्टल पे लॉगिन करो और अपलोड कर दो. एक ये ऑप्शन था. दूसरे भी ऑप्शन थे. GST सुविधा प्रोवाइडर का एक कॉन्सेप्ट आया था, जहां पे दे आर एन इंटरमीडिएटरी. सो इफ यू आर अ लार्ज यूनिट, व्हाट यू नीड टू डू, यू आर इंटीग्रेटिंग योर ERP. अब SAP यूज कर रहे हो, Oracle यूज कर रहे हो, या फिर टैली का भी अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहे हो. सो अपना जो ERP होता है ना, दैट इज कॉल्ड एन ERP. आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम है पूरा, उसको सीधा आप लिंक कर दो पोर्टल से थ्रू दिस GST सुविधा प्रोवाइडर. ASP GSP का कॉन्सेप्ट था. तो दिस आर द इंटरमीडिएटरी, जिसका एक हाथ कनेक्टेड है GSTN से, दूसरा हाथ कनेक्टेड है आपके सिस्टम से. सो यहाँ से वो डेटा कैप्चर करेगा और पोर्टल पे अपलोड कर देगा. आपको सेपरेट कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती डेटा अपलोड करने की. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज लाइक Reliance, L&T, where they have multiple transactions, so they don't want to forgo anything. So this system will automatically captures the data and upload it on a portal. दूसरा ऑप्शन क्या बोला मैंने, हमारे जैसे छोटे SSC के लिए वो खुद एक्सेल यूटिलिटी में डेटा डाउनलोड करेंगे और अपलोड करेंगे उनके लिए. तो ये GSTN ने ये सारे सिस्टम्स दिए हुए हैं. ASP GSP के थ्रू अपलोड करो, GST सुविधा प्रोवाइडर के थ्रू, या फिर डायरेक्ट भी अपलोड करो. उसका काम बेसिक क्या है, उसका बेसिक काम क्या है, तो हम पहले से स्टार्ट करें ना, तो रजिस्ट्रेशन से उसका काम स्टार्ट होता है. आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तभी भी आपको पहले पोर्टल पे ही जाना है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करना है. आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद GSTR 1 फाइल करना, तो भी उसके लिए GSTN चाहिए. सामने वाले आपको ITC चाहिए, सामने वाले को ITC देनी है, उसके लिए भी GSTN चाहिए. आपको टैक्स पे करना है तो उसके लिए GSTN चाहिए. बैंक आपकी इससे कनेक्टेड होगी, इसके लिए आपको GSTN चाहिए. उसके बाद अगर कोई असेसमेंट होता है, आपको रिफंड प्रोसेस करना है, आपने एक्सपोर्ट किया जिसपे आपको रिफंड क्लेम कर सकते हो आप, तो उसके वो एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन जो GST के रिलेटेड है, असेसमेंट, रिफंड, सम स्क्रूटिनी, सो आप कहाँ पे रिप्लाई करोगे, सारा
GSTN पोर्टल के थ्रू ही करोगे. सो वी कैन से दैट द होल लॉ इज रूटेड थ्रू GSTN. सो जिस हिसाब से अगर लॉ में चेंज आएगा कि भाई CGST की क्रेडिट आप SGST के सामने यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, लॉ में है ऐसा प्रोविजन. CGST की क्रेडिट आप SGST के लिए यूज नहीं कर सकते हो, SGST की क्रेडिट आप CGST के लिए यूज नहीं कर सकते हो. तो आप अगर पोर्टल पे वो ट्राई करोगे ना कि आपके पास CGST की क्रेडिट दिख रही है, वो आप यूज करना चाहोगे SGST के सामने, तो वो करने भी नहीं देगा. आर यू गेटिंग इट? श्योर. तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं. जैसे एक और मैं एग्जांपल दूं आपको. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. देयर इज सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 143 वेयर बाय अगर आपको गुड्स भेजने हैं जॉब वर्कर के वहां, तो अगर आप कुछ भी गुड्स रिमूव कर रहे हो तो वो तो सप्लाई हो ही गया. अगर मेरी ब्रांच को भी मैं बेचता हूं तो सप्लाई होता है. कल ही हमने अंडरस्टैंड किया था वो तो अगर आप जॉब वर्कर को कोई गुड्स भेज रहे हो, जॉब वर्कर को क्यों भेज रहे हो? उस पर आपको कोई जॉब वर्क कराना है. हेलो, जैसे आप एक बड़ी पानी की टंकी बना रहे हो, आपका काम ही वही है, लेकिन उसके ऊपर पेंट आप नहीं कर रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट पेंट फैसिलिटी अवेलेबल इन योर प्रीमाइसेस. तो आपको उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बिकॉज दैट रिक्वायर्ड रोबोट्स एंड सो मेनी थिंग्स. एक बंदा है जो वही काम कर रहा है, पेंट का ही, दैट इज अ जॉब वर्कर हमारे लिए. तो हम क्या करेंगे, पानी की बड़ी बड़ी टंकी बना के उसको बेच देंगे, वो पेंट करके वापस आ जाएगी हमारे प्रीमाइसेस में. लेकिन हमारे प्रीमाइसेस से तो निकला नहीं, तो सप्लाई हो जाएगा वो तो दैट सेक्शन 143 सेज दैट कि अगर आप अपने गुड्स को भेजना चाहते हो जॉब वर्कर के वहां फॉर अ जॉब वर्क प्रोसेसिंग, तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे. लेकिन आपके गुड्स 180 डेज के अंदर वापस आ जाना चाहिए. प्रोसेस कितना होगा? 6 महीने चलेगा ना मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है. सो अगर 180 डेज के अंदर वापस नहीं आया ना, तो जिस दिन आपने भेजा था ना उस दिन सप्लाई हुआ ऐसा मान लेंगे. हेलो, मैं जिस एग्जांपल दे रहा हूं, तो अभी आप अगर जॉब वर्कर को कोई गुड्स दे रहे हो ना, तो उस पर टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन ये आपको GST में इंटीमेट करना है कि देखो हमने ये गुड्स, इतनी वैल्यू के गुड्स हमने जॉब वर्कर को भेजे, और फिर जब वापस आएगा तो भी आपको इंटीमेट करना कि ये आ गया है वापस. अगर आपने वो इंटीमेट नहीं किया तो 180 डेज जैसे खत्म होंगे ना, तो ये मशीन है, भूलता नहीं है, सीधा नोटिस आएगा कि आप आया नहीं था वापस, टैक्स पे करो विथ इंटरेस्ट फॉर 180 डेज, क्योंकि ओरिजिनल डे को सप्लाई हुआ ऐसा मान लिया जाएगा. तो GSTN इज समथिंग व्हिच आई विल से द क्रक्स. तो बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर का काम कम हो गया. सो वी डोंट नीड मैन पावर. उनको रेडीमेड रिपोर्ट मिलने लगेंगे कि ये बंदे की ITC मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई डमी इनवॉइसिंग हो रहा है, क्योंकि ये चेन ही टूट जाएगी पूरी. एक परचेज कुछ कर नहीं रहा है और इनवॉइस धड़ाधड़ दे ही रहा है. हेलो, खाली इनवॉइस अगर मैं दूंगा किसी को, खाली इनवॉइस, गुड सप्लाई नहीं करूंगा, तो सामने वालों को ITC मिल जाएगा ना, उतना उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा. तो खाली इनवॉइस ही देता रहा है. अब ये मैन्युअल सिस्टम में कभी पता नहीं चल रहा, या फिर पता चलता था तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती थी. तब तक तो ये बंदा ये चला जाता था फॉरेन. हाँ, अब ऐसा नहीं है. अब GSTN इमीडिएट नेक्स्ट वन बताएगा कि E लिमिटेड नई इनकॉर्पोरेट हुई है, उसने कोई परचेज नहीं किया है और इनवॉइस कर दिए 200 करोड़ के. तो क्या सप्लाई किया? सर्विस भी नहीं, गुड्स. तो वो GSTN इमीडिएटली इसको पकड़ेगा, और जैसे इसको पकड़ा ना, फिर तो कितना इजी हो गया चेन, बिकॉज सारे ट्रांजैक्शन इनवॉइस लेवल अपलोडिंग हुआ है. इससे इसके पास, इससे पास, इससे इसके पास. मैं किस किस को सप्लाई की इनवॉइस आपने आगे. सिर्फ इनवॉइस का धंधा भी चलता है, उससे 2 बेनिफिट होता है ना, सामने वाला खर्चा भी बुक करेगा इनकम टैक्स में भी, और ITC का भी बेनिफिट. लेकिन वो पहले मैन्युअल था तो पता नहीं चलता था, क्योंकि अगर कोई डिपार्टमेंट आया, H के पास आया है, तो उसको मैक्सिमम चेक करेगा, वो C चेक करेगा कि उसने किससे परचेज किया है, वो फ्रॉड है कि नहीं है. वो कभी भी A तक तो पहुंच ही नहीं पाता था, एक्सेप्ट कि कोई इंफॉर्मेशन हो उसके पास. तो अब तो पोर्टल को पता चलेगा कि इससे इसके पास गया, इससे इसके पास गया, इससे इससे पास गया. समझ रहे हो? तो सीधा पकड़ लेगा, A को पकड़ो और A के साथ साथ इन लोगों को पकड़ो सीधा.
और हमने देखा बहुत सारे केसेस में, हम जाते हैं हियरिंग में तो पता चलता है, वो सीधा बता देगा कि ऐसा नहीं है, अगर आपके पास आ जाएंगे ना तो चलो मुझे चेक करना है, नहीं वो बोलेंगे पार्टी निकालो, ये पार्टी का इनवॉइस निकालो, अब दिखाओ इससे क्या खरीदा आपने। तो फिर ना ऐसे कि अपनी शक्ल देख लेता है, हाँ ये तो सिर्फ हमने इनवॉइस लिया, समझ रहे हो, ऐसी चीजें होती हैं। उतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होती है इनके पास कि ये 5 बंदे के पास आप जो दिखा रहे हो 5 करोड़ का सामान लिया था, वो बंदा दर्जी है। ऑनेस्टली दिस हैज हैपेंड कि जे बंदे जिसके नाम पे आपने इनवॉइस लिए ना, वो ओरिजिनली बंदा अहमदाबाद में ना सिलाई का काम कर रहा है, उसको पता भी नहीं है, उसको मोबाइल के सिम कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट लेके गया कोई, पैन कार्ड और सब कुछ, पूरा रजिस्ट्रेशन खत्म, जीएसटी उसके नाम से बिल पड़ रहा है, और यहाँ तक भी पहुंच गया, मतलब पूरी चेन। फिर इससे आगे भी जाएगा कि आपने ये इनवॉइस आगे किसको सप्लाई किया बताओ मेरे को। तो अब ये बहुत इजी हो गया बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी। Am I clear? So that is a definition, or you can say a short note sort of things which they can ask. Then there is a GST council, but yes. सर ये जीएसटी एंड प्राइवेट कंपनी भी और नॉन प्रॉफिट भी, हाँ क्या है? सर इनका रेवेन्यू नहीं होता है? रेवेन्यू होता है ना, लेकिन दैट इज रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक इंटेंशन इज नॉट ऑफ रेवेन्यू। जैसे पतंजलि हो गया, बेसिक इंटेंशन इज नॉट रेवेन्यू, सो दे आर डूइंग सेवा, ठीक है, उतना चार्जेस भी नहीं लेते। आप अगर आप देखो ना तो रजिस्ट्रेशन आप कराने जाओ तो देयर इज नो चार्ज विच यू नीड टू पे फॉर दैट। अब रजिस्ट्रेशन कराओ तो आपको चार्ज पे करते हो क्या? कुछ भी नहीं पे करते हैं, तो दे आर नॉट चार्जिंग, एज ऑफ नाउ दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। तो ये सारे बैंक को सबको साथ में रख के ये कंपनी चालू करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर इन्फोसिस ने बनाया है जीएसटी का पूरा, और कितने करोड़ का खर्चा है, 6,500 करोड़ समथिंग इतना खर्चा है। तो अभी गवर्नमेंट खुद नहीं निकालना चाहती थी, अभी इससे बैंकिंग सेक्टर को भी साथ में रखा, क्योंकि बैंकिंग पेमेंट इसके थ्रू होगा ना, सो दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स बैंक्स, सो बैंक को भी इन्वेस्ट कराया। बट स्टिल देयर आर क्वेश्चंस, बिकॉज अंडरस्टैंड, अगर HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, these are not Indian banks, and when they become a stakeholder of GSTN, these are the issues, but I'm not discussing, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आप GSTN को ओनर हैं, चल हम, तो हमें वो तो पता चलेगा ना, फिर हमारा उतना तो होल्ड होगा ना। अगर मैं 20% ओनर हूँ GSTN का, तो मुझे वो तो पता चलेगा ना इन द नेम ऑफ रिपोर्टिंग कि इंडिया में क्या बिक रहा है, क्या है इंडिया का मार्केट। कोई सर्वे करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक गुड्स के पीछे HSN है, तो HSN वाइज रिपोर्ट निकालो, क्या बिक रहा है, कितना बिक रहा है, किसकी डिमांड है, किसका सप्लाई कम है, क्या प्राइस पे बिक रहा है। अब समझ रहे हो कौन से लेवल पे क्या प्राइस पे बिक रहा है। Accordingly, if they start sharing a data, I'm not saying that they would be sharing a data to the foreign countries या फिर foreign companies को या फिर चीन को दे रहे होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन it's very much possible, because when I'm an owner, I know the whole economy of the country then, so that is a concern कि ये प्राइवेट एंटिटी को जो आपने यहाँ पे ओनरशिप दी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने साथ में मिलके बनाया है ये GSTN, and many of them are foreign companies. So Indian data of GSTN is very very crucial data. हमें लगे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ मेरे ट्रांजैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी इकोनॉमी में, क्योंकि HSN कोड होगा ना उसमें, तो क्या कितने में बिक रहा है ना, कौन सी कंपनी को कितने में बेच रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर दूसरी कंट्री के पास जाए और इंडिया में अगर उसको आना है तो उसको वही चाहिए ना कि इंडिया में इसका मार्केट कितना है, सर्वे करना है। तो HDFC बोलेगा रुको, क्या सर्वे में दे दो ना ये डेटा आपको, इतने करोड़ लगेंगे, और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। सर्वे में तो इंफॉर्मेशन गलत होने के भी चांसेस हैं, मैं आपको रियल इंफॉर्मेशन रियल टाइम दे सकता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ HDFC कर रहा है ऐसा, लेकिन दिस इज वेरी मच पॉसिबल। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वुड बी टेकिंग केयर दैट डेटा थेफ्ट नहीं हो उसके लिए, लेकिन ये हो सकता है। तो ट्रस्ट के नाम पे बनाया है GSTN, ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन जैसे फेसबुक है ना, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। कितना कर रहा है, हमको तो ऐसे ही है कि ये
सोशल गैदरिंग के लिए ही बनाया है, सोशल मीडिया है ये। लेकिन आप देखो कितना सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम पे पैसे ले रहे हैं लोग, पैसे कमाते तो नहीं है कि आप इतना पैसा बनाते हैं। सेम वे, क्लियर? आई विल स्टॉप हियर टुडे। जीएसटी काउंसिल में आपको क्विकली कल एक्सप्लेन करूंगा और कल से हम सप्लाई का डेफिनेशन भी स्टार्ट करेंगे एंड विल हैव अ मोर बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। विल स्टॉप हियर फॉर द डे।